वेलकम टू एडू गाइडेंस। करंट अफेयर्स सेक्शन में आज हम 16 जुलाई से 22 जुलाई तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे 16 जुलाई से 22 जुलाई तक के हर दिन के मुख्य समाचार। इनमें से कुछ जरूरी खबरों का करेंगे विस्तार से विश्लेषण। एक फीचर आर्टिकल जो कवर करेगा एक कॉमन टॉपिक जिसके बारे में हम हर दिन सुनते तो हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है वो नहीं जानते। आज का फीचर आर्टिकल होगा डिफरेंट कलर नंबर प्लेट्स इन इंडियन व्हीकल्स। भारतीय वाहनों में अलग अलग रंग की नंबर प्लेट क्यों होती है इसके बारे में। वीडियो के अंत में होगा खबरों से जुड़ा हुआ और आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए रैपिड क्वेश्चन आंसर राउंड। आइए शुरू करते हैं ज्ञान की यात्रा। करंट अफेयर्स हेडलाइंस 16 जुलाई 2022। नेशनल न्यूज। PM Narendra Modi to inaugurate Bundelkhand Expressway today. Bill to regulate digital media listed for upcoming Parliament monsoon session. Monkeypox infectivity less, but can be fatal for children, says expert. Vaccine protection against COVID-19 short-lived. Booster shots are essential. BJP appoints Lakshmikant Vajpayee as Chief Whip of Rajya Sabha. India assures continued support to democracy, stability and economic recovery in Sri Lanka. Former Punjab Assembly Speaker and senior SAD leader Nirmal Singh Kehlon passes away after a prolonged illness at the age of 79 years. Defense Minister Rajnath Singh launches Dunagiri stealth frigate built by GRSE in Kolkata. IIT Madras Engineering College tops, followed by IIT Delhi and IIT Bombay in Ministry of Education's national rankings. GST on green alternatives raw material should have been slashed by centre before banning single-use plastic, says Delhi Minister Gopal Rai. International news. US House of Representatives approves amendment in defense budget to train Ukrainian pilots. Southeast Asia on alert for monkeypox. WHO regional director said. Israeli warplane strikes Hamas military site in Gaza Strip. US President Joe Biden warns Saudi Crown Prince against future attacks on dissidents. Over 6 million people in crisis hit Sri Lanka food insecure World Food Program. San Francisco Airport Terminal evacuated due to bomb threat. Sri Lankan Parliament meets to announce president's vacancy. President Joe Biden becomes first US president to fly directly from Israel to Saudi Arabia, signaling warming ties amid Iran threat. Sports news. Murali Srishankar becomes first Indian male long jumper to qualify for World Athletics Championships final. Netherlands and Zimbabwe booked their place in the ICC Men's T20 World Cup 2022 after beating USA and Papua New Guinea in their respective World Cup qualifier semi-finals. Norway knocked out of Women's Euro 2022 after shock defeat by 1-0 against Austria on July 15. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। जाने भारत के टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में किसने NIRF रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई को NIRF रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में टॉप 10 यूनिवर्सिटी के नाम जारी किए हैं, जिसमें दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटी जामिया और JNU ने टॉप 10 में जगह बनाई है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु, दूसरा स्थान JNU दिल्ली और तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। इस रैंकिंग को और अधिक डिटेल से जानने के लिए आप NIRF की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक बार फिर से पहले स्थान पर जगह बनाया है। इस बीच BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। नरेंद्र तोमर लॉन्चेस E-NAM प्लेटफॉर्म। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने E-NAM के तहत एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने किसानों को अपनी फसलों को अपने राज्य के बाहर बेचने की एक बढ़िया सुविधा पेश की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने E-NAM के तहत एक प्लेटफॉर्म POP को लॉन्च किया है। POP के लॉन्च होने से किसानों को अपने अनाजों को राज्य की सीमाओं के बाहर बेचने से आसानी होगी। यह किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सर्विस प्रोवाइडर तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच होगी और उनकी उपज को सही दाम मिलेगा। UIDAI लॉन्च्ड आधार फेस RD मोबाइल ऐप। UIDAI ने आधार फेस RD के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार फेस RD
के नाम से एक मोबाइल ऐप के मदद से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। इस प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड धारकों को अब फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी। UIDAI ने आधार की पहचान की पुष्टि करने के तरीके के रूप में फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। करंट अफेयर्स 17 जुलाई। National news. BJP announces West Bengal Governor Jagdeep Dhankar as its vice presidential candidate. PM inaugurates 296-kilometer long Bundelkhand Expressway constructed at a cost of rupees 14,850 crores. 18th All India Legal Services Authority meet held in Jaipur. JNK Indo-Tibetan Border Police (ITBP) Jawan shoots 3 colleagues before killing self at a camp in Udhampur district. Former Punjab Speaker Shiromani Akali Dal (SAD) leader Nirmal Singh Kehlon dies at 79 years. International news. US decides not to impose sanctions against India for purchasing S-400 missiles from Russia. India gets CAA-TSA countering America's adversaries through Sanction Act's waiver. World Emoji Day being celebrated on July 17. Economy and corporate sector. Center amends legal metrology packed commodities rules. Will allow electronics industries to declare information in digital form through QR code. Sports. International Shooting Sport Federation ISSF World Cup in Changwon, Korea. Aishwarya Pratap Singh Tomar wins gold medal in men's 50-meter rifle 3 position 3P event. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस क्यों मनाया जाता है और इस दिन का इतिहास क्या है? हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के पीड़ितों को न्याय लेने के महत्व को दर्शाता है। इस दिवस का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 1998 में रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है। इस संधि की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना की गई थी। 1998 में इस दिन से लगभग 139 देशों ने कोर्ट की संधि पर साइन किया था। तब से लेकर आज तक हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्थायी और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ऑर्गेनाइजेशन है। यह तब उपलब्ध होता है जब कोई देश जांच करने में सक्षम नहीं होता और अपराधियों पर यह मुकदमा चला सकता है। इंडिया टू मेक ग्लोबल पेमेंट्स इन रुपीज इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। डॉलर के स्थान पर भारत अब रुपए में करेगा विदेशी व्यापार। डॉलर पर रुपए की निर्भरता अब जल्द ही खत्म होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ये घोषणा की है कि वह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर रहा है। इस प्रसंग में आगे RBI ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ निर्यात पर जोर देने और वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 1 जुलाई को आई एक रिपोर्ट के अनुसार जून के आखिरी हफ्ते तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से 5 अरब डॉलर कम हो चुके हैं। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए रुपए को इंटरनेशनल करने का फैसला किया है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस 18 जुलाई 2022। नेशनल न्यूज। Voting for Indian presidential elections 2022 to be held between 10 a.m. to 5 p.m. India reports 16,935 fresh cases, 16,069 recoveries, and 51 deaths in the last 24 hours. Active cases stand at 1,44,264. West Bengal Governor Jagdeep Dhankar submits resignation to President Kovind. Manipur Governor La Ganeshan given additional charge. Child suspected to have contracted monkeypox tests negative in Andhra Pradesh. Air India Express flight diverted to Muscat due to burning smell in cabin. SC bench headed by CJI to hear pleas of both factions of Shiv Sena on July 20th. Opposition's vice presidential candidate Margaret Alva to file her nomination papers at 11 a.m. on 19 July. INS Sundudhwaj decommissioned after 35 years of service to nation. International news. Sri Lanka's acting president Wickremesinghe declares emergency. Vice President of Gambia Badra Diouf arrives in India on a 5-day visit. Ukraine carrier cargo plane reportedly carrying explosives crashes in Greece. Ukraine president sacks Chief of Domestic Intelligence and Security Agency and Prosecutor General. Sports news. Rishabh Pant's maiden ODI ton guides India to a 5-wicket win over England. India clinches the ODI series 2-1.
Hardik Pant had India series clinching win over England in third ODI. Environmental news. Firefighters are battling to contain wildfires sweeping across southwest Europe as a heatwave showed no sign of abating. Water police patrol brought hits Los Angeles streets. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। कौन है ऑस्कर साला जिनका डूडल गूगल ने बनाया है? आज 18 जुलाई 2022 को गूगल ने ऑस्कर साला के 112वें जन्म दिवस के अवसर पर उनका गूगल डूडल बनाया है। जो कोई भी संगीत प्रेमी है उन्हें और ऑस्कर साला के बारे में अवश्य जानना चाहिए। ऑस्कर साला को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के डेवलपर और इनोवेटर माना जाता है। वह मिक्स ट्रोटोनियम के जन्मदाता हैं और ऑस्कर साला ने टेलीविजन, रेडियो और फिल्म के लिए यूनिक साउंड प्रेजेंट किए हैं। साउंड को अलग अलग इफेक्ट देने में म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑस्कर साला का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का बहुत इस्तेमाल किया हुआ है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का थीम क्या रखा गया है? हर साल 18 जुलाई को विश्व में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति और रंग भेद के खिलाफ न्याय के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें सम्मानित और स्मरण करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला के जीवन का उद्देश्य था दुनिया में शांति को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों को बनाए रखना एवं प्रकृति के साथ सद्भाव और सभी के लिए सम्मान की शिक्षा की आवश्यकता पर बल देना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। P-17A क्लास P-17 शिवालिक क्लास का फॉलो ऑन है जिसमें बेहतर स्टील फीचर और उन्नत हथियार शामिल हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने लिया वनडे क्रिकेट से संन्यास। बेन स्टोक्स ने मंगलवार को इंग्लैंड वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के मैच के बाद वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। बेन स्टोक्स को हाल ही में इंग्लैंड का टेस्ट कैप्टन बनाया गया था। अब तक बेन इंग्लैंड के लिए 104 वनडे मैच खेल चुके हैं। बेन स्टोक्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच खेलने के बाद वनडे इंटरनेशनल मैचों से संन्यास लेने की बात की है। बेन स्टोक्स 2019 में अपनी वर्ल्ड कप जीत में इंग्लैंड के नायकों में से एक हैं। स्टोक्स पिछले साल मेंटल थकान से उभरने के लिए कुछ समय की छुट्टी ली थी। करंट अफेयर्स हेडलाइंस 19 जुलाई 2022। नेशनल न्यूज। इंडिया रिकॉर्ड्स 15,528 न्यू COVID-19 cases today. Active caseload stands at 1,43,654. CPIM Rajya Sabha MP Ilma Ram Karim gives suspension of business notice under Rule 267 on the issue of price rise and imposition of 5% GST on essential items. South Sudan Vice President arrives in India, set to participate in CII Exim Bank conclave. Margaret Alba to file nomination for vice presidential election today. Sri Lankan leader of opposition Sajid Premadasa withdraws candidacy for the position of president. Centre to hold all-party meeting over Sri Lankan crisis today. India and Madagascar joins hands to ramp up bilateral ties. A bill seeking to amend Family Courts Act to provide for establishing family courts in Himachal Pradesh. Indian rupee falls below 80 per US dollar for the first time on record. International news. Ghana declares first outbreak of deadly Marburg virus. Indian government reviews health actions at international airports and ports. An earthquake of magnitude 4.8 occurred at around 8:08 p.m. in the 66-kilometer SSE of Faizabad, Afghanistan. Prime Minister Narendra Modi to interact with the Indian contingent bound for the Commonwealth Games CWG 2022 on July 20th. Sri Lankan opposition leader says withdraws presidential candidacy. Turkish President Recep Tayyip Erdogan on July 18, 2022 renewed his threat to freeze NATO membership bids to Sweden and Finland. NATO membership bids of Sweden and Finland. Environmental news. Australia's unique wildlife is in retreat as it feels from bushfires, drought, human activity and global warming. A government report shows prompting calls for dramatic change. Mexico resumes building part president's flagship tourist train project despite a judge suspending construction on environmental grounds. A fierce heat wave in Western Europe on July 18 left much of the continent wilting under a scorching sun, smashing temperature records and feeding ferocious forest wildfires. Sports news. West Indies cricketer Lendl Simons announced retirement from international cricket. Former West Indies captain
captain Dinesh Ramadeen announces retirement from international cricket. Women's World Cup football champion USA qualifies for 2024 Olympics. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। प्रसिद्ध गायक भूपिंदर सिंह का 82 वर्ष की आयु में निधन, जानिए इनके बारे में। गायक भूपिंदर सिंह का 82 वर्ष की आयु में 19 जुलाई 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रसिद्ध गायक भूपिंदर सिंह पिछले 10 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का इलाज चल रहा था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भूपिंदर सिंह 10 महत्वपूर्ण तथ्य और उनके गाए प्रसिद्ध गीत। भूपिंदर सिंह का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पिता प्रोनाथ सिंह जी एक प्रशिक्षित गायक और उनके प्रारंभिक संगीत शिक्षक थे। भूपिंदर सिंह को एक समय में संगीत और वाद्य यंत्रों से नफरत थी क्योंकि उनके पिता बहुत सख्त शिक्षक थे। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पर प्रदर्शन के साथ की। एक प्रशिक्षित गायक होने के अलावा उन्होंने वायलिन और गिटार जैसे वाद्य यंत्र भी सीखे। उन्हें संगीत निर्देशक मदन मोहन ने 1962 में आकाशवाणी दिल्ली के निर्माता सतीश भाटिया द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज में देखा और उन्हें बॉम्बे बुलाया गया। चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के लिए उन्हें अनुभवी गायक मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा गाने का मौका मिला। उन्होंने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ लोकप्रिय युगल गीत गाए। उनमें से कुछ में दुनिया छूटे यार न छूटे और आने से उसके आए बाहर शामिल है। उनकी आवाज पार्श्व गायन में सबसे अनोखी आवाजों में से एक मानी जाती थी। उन्हें गजल शैली में स्पेनिश गिटार, बॉस और ड्रम पेश करने का श्रेय दिया जाता है। 1980 के दशक के मध्य में बांग्लादेशी गायिका मिताली से शादी के बाद उन्होंने पार्श्व गायन से दूरी बना ली। तब से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कई एल्बम गाए और लाइव संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया और कई गजल और गीत कैसेट का निर्माण किया। भूपिंदर सिंह के कुछ प्रसिद्ध गीत। भूपिंदर सिंह के कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में नाम गुम जाएगा, होठों पे ऐसी बात, पीती न बिताई रहना, दिल ढूंढता है, कभी किसी को मुकम्मल, दो दीवाने शहर में, करोगे याद तो, किसी नजर को तेरा इंतजार, कैसे कहूँ कुछ ना कुछ कह ना सकूं, थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां, मीठे बोल बोले, बादलों से काट काट के और एक अकेला इस शहर में शामिल है। Current Affairs Headlines 20th July 2022 National News Research reveals genes from microbes crucial for insect evolution. Sri Lanka to elect a new president today amid an economic crisis. Team India arrives in Trinidad for white ball series against West Indies. Yellow alert issued for Delhi today. Generally cloudy sky, moderate to heavy rain and thunderstorms are expected. India extended concessional loans for over $12.3 billion to Africa. PM Modi to interact with Indian contingent bound for CWG today. Vice President Venkaiah Naidu meets African leader over lunch at Hyderabad House. Rahul Shivale to be leader of Shiv Sena in Lok Sabha. Bhavna Gowali to remain chief whip. Russian embassy approaches MEA for explanation of circumstances of cargo ship detention in Kochi. India denies reports of Russia seeking payment for oil and dirhams. Haryana CM Manohar Lal Khattar announces ₹1 crore compensation to kin of DSP killed by mining mafia, job to family members. International news. US House passes bill to protect same-sex marriage. Russian President Vladimir Putin holds talks with Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Iran in his first visit outside Russia since the February 24th invasion of Ukraine. US adds Vietnam, Cambodia and Macau to human trafficking blacklist. EU proposes to unblock Russian bank funds to boost food trade. Ukraine's First Lady Olena Zelenska welcomed to the White House on July 19 by her US counterpart Jill Biden and President Joe Biden. Russia, Turkey and Iran to continue cooperation to eliminate terrorists in Syria. Russian President Vladimir Putin thanked Turkish President Recep Tayyip Erdogan on July 19 for mediating talks on the export of grain from Ukraine. US says Russia moving to annex additional Ukrainian territory. US overdose deaths increased 44% for Black people and 39% for Native Americans in 2020 compared to 2019. EU proposes to unblock Russian bank funds to boost food trade. Rishi Sunak tops Conservative MP's latest vote as UK PM race narrows to 3. US House votes to protect same-sex marriages, pushing back against Supreme Court after aborting ruling racist concerns. Science and technology. James Webb Telescope suffers
irreparable damage due to collision with a space pebble. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। वर्ल्ड चेस डे 2022 विश्व शतरंज दिवस का महत्व और इतिहास क्या है? 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने विश्व शतरंज दिवस को मनाने के लिए मान्यता दी थी। 20 जुलाई को ही शतरंज दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। FIDE के सदस्य के रूप में 150 से अधिक शतरंज यूनियन शामिल हैं और 1966 से ही विश्व शतरंज दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि शतरंज खेल, जिसे कभी चतुरंग के रूप में जाना जाता था, लगभग 1500 साल पहले इस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। बाद में यह फारस में अपना रास्ता तय कर लिया, जहां ये अरब शासन के बीच और अधिक विकसित हुआ, जिसके बाद यह दक्षिण यूरोप में प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। यूरोप में शतरंज ने अपने वर्तमान रूप में 15वीं शताब्दी के बीच और अधिक डेवलप हुआ और 15वीं शताब्दी के अंत तक शतरंज मॉडर्न खेल में बदल गया था। इंटरनेशनल मून डे, चंद्रमा दिवस, क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे क्या महत्व है और इतिहास है? हर साल 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई साल 1969 को मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। नासा द्वारा चंद्रमा पर मनुष्य के पहली बार कदम रखने को आज तक की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है, इसलिए इस दिन को चंद्रमा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को शाम 8:17 बजे अपोलो 11 पृथ्वी के एकमात्र सैटेलाइट पर उतरा था और तभी से इस दिन को बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद से सभी लोगों को यह विश्वास हो गया था कि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा में जाने वाले पहले मनुष्य थे और उनकी यह उपलब्धि को मनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की जमीन पर 21 घंटे से अधिक का समय बिताया था। करंट अफेयर्स हेडलाइन 21 जुलाई 2022 National News. Counting of votes for 15th presidential election to begin at 11 a.m. on July 21, 2022. Punjab CM Bhagwant Mann admitted to the hospital. World Health Organization (WHO) confirms 14,000 cases of monkeypox worldwide, with 5 deaths reported in Africa. Tripura CM Manik Saha tested positive for COVID-19. Telangana requests Centre to provide rupees 1,000 crore as immediate assistance towards flood relief. Karnataka to bring a new policy to ensure power supply to every poor household of the state. International news. Canada's Public Health Agency has confirmed a total of 604 cases of monkeypox in the country as of July 20. Former British Finance Minister Rishi Sunak and Foreign Secretary Liz Truss through to the final stage of the UK PM race. Penny Mordaunt knocked out. US President Joe Biden to speak with Chinese President Xi Jinping by the end of this month amid simmering tensions between over Taiwan and trade. Ranil Wickremesinghe to be sworn in as Sri Lanka's new president today. US President Joe Biden announces modest climate actions, pledges more to come. James Webb Space Telescope may have found earliest known galaxy in the universe that existed 13.5 billion years ago. Russian gas deliveries expected to resume at previous level after maintenance ends Thursday. The UK government gives go-ahead to the new Sizewell C nuclear power station in eastern England. Corporate sector. Wipro's revenue from operation rises 18% year-on-year to rupees 21,528.6 crore in June quarter. Sports news. India's CWG bound sprinter S. Dhanalakshmi and triple jumper Aishwarya Babu failed dope tests. Postponed Asian Games to be held in 2023 in China from September 23 to October 8. World 100-meter champion Curley out of the world relays with injury. Environmental news. Human food waste a threat to polar bears. Fewer manatee deaths have been recorded so far this year in Florida compared to the record-setting numbers in 2021. Spain has reported over 679 people in the first 8 days from July 10th to the 17th of the second heat wave. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। क्या है डिजिटल लोक अदालत, जाने इसके बारे में विस्तार से। राजस्थान में देश के पहले डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान इस लोक सेवा अदालत को लॉन्च किया है। यह अदालत भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाला अदालत है। एक ऑफिशियल बयान के अनुसार
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस डिजिटल लोक अदालत के प्रयोग की भागीदारी यूपीटी जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में शनिवार को की थी। स्वामित्व योजना क्या है और इसे लागू करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? कानूनी स्वामित्व अधिकार संपत्ति कार्ड के साथ कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए घर के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रोवाइड करना इस योजना का कार्य है। योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीकों से सभी गांव के ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में जमीनों का सर्वे किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक देश के 6.62 लाख गांवों को कवर करना तय किया गया है। क्या है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा और ग्राहक कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अपने कस्टमर और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए समय समय पर नई नई सुविधाएं लॉन्च करता रहता है। ऐसे में अब SBI ने अपनी बैंकिंग सेवा को अपने कस्टमर के लिए और अधिक आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ उठाने का मौका दिया है, जिसके जरिए अब कस्टमर घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से SBI व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है और भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाली कंट्री की लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 एशियाई देशों में जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने इस लिस्ट में टॉप 3 स्थान हासिल किया है। एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के नए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में 87वें स्थान पर बना हुआ। करंट अफेयर्स हेडलाइंस 22nd July 2022. National news. NDA's presidential candidate Draupadi Murmu officially declared as the president of the country. Draupadi Murmu elected to office of President of India after securing 2,824 first preference votes, which carry electoral value of 6,76,803. PM Narendra Modi urges people to hoist tricolour between August 13 to August 15. Gujarat CM Bhupendra Patel launches the logo of the 36th National Games in Gandhinagar. Indian government invites bids for the design and construction of Mumbai Underground Station and tunnels for the bullet train project. African swine fever reported in Wayanad district of Kerala, says State's Animal Husbandry Ministry J. Chinturani. BJP Lok Sabha MP Ravi Kishan to introduce private members bill on population control today. International news. Japan to hold state funeral of former Japanese PM Shinzo Abe. US President Joe Biden tests positive for COVID-19, shows mild symptoms as of now. Dinesh Gunawardena sworn in as 15th Prime Minister of Sri Lanka. World's oldest male giant panda NN dies at the age of 35 years. India-UK sign MOU on mutual recognition of educational qualifications. Italy to face election as president dissolves parliament. YouTube to remove videos carrying misinformation about abortion. Sports news. Neeraj Chopra qualifies for World Athletics Championships final with 88.39 meter throw in first attempt. Javelin thrower Rohit Yadav makes it to the final round of the World Athletics Championships 2022. Eldhose Paul becomes first Indian to reach the men's triple jump final. Asia Cup to be held in UAE confirms BCCI President Saurav Ganguly. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। जाने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की पूरी सूची के बारे में। 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। इस साल इस पुरस्कार समारोह में 2020 की फिल्मों के भी पुरस्कार की घोषणा हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते उस समय समारोह का आयोजन नहीं हो पाया था। हर साल यह कार्यक्रम फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। सोरारई पोट्टुई ने इस बार 4 सबसे बड़े पुरस्कारों में से 3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं और तानाजी द अनसंग वॉरियर ने भी प्रमुख पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अनमैरिड महिलाओं के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को महिलाओं का अधिकार बताया है, चाहे वह महिला विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने एक अविवाहित महिला के 24 हफ्ते के गर्भ को अबॉर्ट करवाने के लिए एम्स के मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश जारी किया है। अगर उस महिला का अबॉर्शन से खतरा नहीं है तो उसका अबॉर्शन करवाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला के अबॉर्शन की परमिशन नहीं दी। फीचर्ड आर्टिकल, डिफरेंट कलर नंबर प्लेट्स इन इंडियन व्हीकल्स। भारतीय वाहनों में अलग अलग रंग की नंबर प्लेटें क्यों होती है? कहीं बाहर आने जाने के दौरान आपने सड़कों पर कभी न कभी अलग अलग रंगों वाले नंबर प्लेट्स की गाड़ियां जरूर देखी होंगी। क्या आपको पता है कि भारतीय वाहनों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट्स क्यों लगे होते हैं? क्या इन अलग अलग रंगों का कोई खास मतलब होता है? जी हाँ, गाड़ियों में अलग अलग रंगों के नंबर प्लेट्स का एक खास मतलब होता है। आइए जानते हैं इन अलग अलग रंगों के नंबर प्लेट्स का क्या मतलब होता है। 6 रंगों की नंबर प्लेट्स। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अनुसार भारत की सड़कों पर चलने वाली सभी मोटर चालित वाहनों को आरटीओ के साथ पंजीकृत होना और उनमें लाइसेंस प्लेट या नंबर प्लेट लगा होना आवश्यक है। भारत में चलने वाली तमाम गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में कुल 6 रंगों की नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सफेद, लाल, पीली, हरी, नीली और काले रंग की नंबर प्लेट शामिल हैं। इन सभी रंगों वाले नंबर प्लेट्स का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी कम ही होती है। हालांकि ट्रैफिक अधिकारी इन नंबर प्लेट्स को दूर से ही देखकर गाड़ी की कैटेगरी को पहचान लेते हैं। पहला, सफेद नंबर प्लेट। वे गाड़ियां जो प्राइवेट या पर्सनल इस्तेमाल के काम में लाई जाती हैं, उनके ऊपर सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है। इन सफेद नंबर प्लेट के ऊपर काले रंग से गाड़ी का नंबर अंकित किया हुआ रहता है। इसका मतलब है कि इस गाड़ी का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी आप इसको माल भाड़े पर नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई कार या बाइक है तो आपने देखा होगा कि उसका नंबर प्लेट भी सफेद रंग का होगा, जिस पर काले रंग से नंबर लिखे हुए होंगे। दूसरी, लाल नंबर प्लेट। लाल रंग की नंबर प्लेट्स केवल भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की आधिकारिक वाहनों में लगी होती है। इन पर लाइसेंस प्लेट नहीं होती है। नंबर प्लेट पर नंबर के बजाय अशोक का चिन्ह अंकित होता है। इन वाहनों पर लाल रंग की ढाल पर सोने में उभरा हुआ अशोक का प्रतीक चिन्ह लगा होता है। इसके अलावा लाल रंग की टेम्परेरी नंबर प्लेट उन वाहनों पर भी लगी होती है जिन्हें कोई कार निर्माता कंपनी टेस्टिंग या फिर प्रमोशन के लिए सड़कों पर उतारती है। तीसरा, पीली नंबर प्लेट। आपने पीले नंबर प्लेट्स की बहुत सी गाड़ियां देखी होंगी। पीले रंग की नंबर प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जो सार्वजनिक होते हैं। उनका कमर्शियल इस्तेमाल होता है। सार्वजनिक यानी वाणिज्यिक वाहन होते हैं, जैसे बस, टैक्सी, ओला और उबर कैब, ऑटो रिक्शा, बाइक, टैक्सी आदि। इनके अलावा कमर्शियल माल वाहनों पर भी इसी रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, हाइवा, ट्रेलर आदि। पीले रंग की नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले चालकों के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। चौथी, हरी नंबर प्लेट। भारत में हरे रंग की नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं आई है। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लगाई जाती है। खास बात यह है कि हरे रंग की नंबर प्लेट सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों पर लगाई जाती है। इनमें एक खास बात यह होती है कि प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट पर सफेद रंग के नंबर लिखे होते हैं, जबकि कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर पीले रंग की स्याही से नंबर लिखे जाते हैं। पांचवा, नीली नंबर प्लेट। भारत में नीले रंग की नंबर प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जिनका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों, राजदूतों आदि के द्वारा किया जाता है। इन नीले रंग की प्लेट्स पर सफेद रंग से नंबर लिखे होते हैं। ऐसे वाहनों का प्रयोग विदेशी दूतावासों, विदेशी राजदूत या राजनियों के द्वारा किए जाते हैं। छठी, काली नंबर प्लेट। काले रंग की नंबर प्लेट केवल ऐसे कमर्शियल वाहनों पर लगाई जाती है जिन्हें किराए पर दिया जाता है। इन रेंटल कार पर काले रंग की नंबर प्लेट लगी होती है, जिन पर पीले रंग से नंबर लिखे हुए होते हैं, लेकिन इन गाड़ियों का प्रयोग केवल कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। रैपिड फायर क्वेश्चंस। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक। भारत और किस देश में टेली शिक्षा के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मेडागास्कर। सुधाकर दलेला किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? भूटान। किस देश ने हाइफा पोर्ट को $1.2 बिलियन में अडानी पोर्ट्स को बेचा है? इजराइल।
हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन सा शैक्षिक संस्थान शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मद्रास। किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए निलंबित किया गया है? बांग्लादेश। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? चेन्नई। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली। कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर क्या है? 15.18%। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल है? केरल। भारत के पहले अद्वितीय रक्त समूह का नाम क्या है? EMM नेगेटिव। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? टोक्यो। भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में सामने आया है? केरल। आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में किस भारतीय गेंदबाज को शीर्ष पर रखा गया है? जसप्रीत बुमराह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? हरमनप्रीत कौर। विंबलडन 2022 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? नोवाक जोकोविच। किस पश्चिम अफ्रीकी देश द्वारा मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? झारखंड। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? 1975। भारत में फुटबॉल खेल की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी के मध्य में। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक। 2022 में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन थे? प्रज्ञानंद। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 2007 में। फ्लाइंग सिख के रूप में किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मिल्खा सिंह। देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। उपराष्ट्रीय चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा किसे नामित किया गया है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्ष का उम्मीदवार कौन है? मार्गरेट अल्वा। किस भारतीय राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ला गणेशन। कौन सा भारतीय शहर शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। इंग्लैंड में एक दिवसीय और टेस्ट दोनों में शतक बनाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋषभ पंत। इंग्लैंड में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल के हफ्तों में किस राज्य में काला बुखार के मामले सामने आए हैं? पश्चिम बंगाल। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा है? बेंगलुरु। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? वरिष्ठ नागरिक। हाल ही में नासकॉम द्वारा स्थापित डिजिवाणी कॉल सेंटर के लिए कौन सी टेक कंपनी फंड करती है? गूगल। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक। बठिया आयोग की रिपोर्ट जो खबरों में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थानीय निकायों में आरक्षण। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 जो खबरों में रहा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत ने चीता के पुनरुत्पादन और वन्य जीव संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नाम्बिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई 20। क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी ने हाल ही में किन स्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों NSC STI का एक सेट विकसित किया है? सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान।
ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के MD के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? जी राजकिरण राय। मेराज अहमद खान जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से जुड़े हैं? शूटिंग। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? राजस्थान। आशा करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स का ये संस्करण पसंद आया होगा। रविवार को सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स का नया वीडियो आपको मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। अगर आप करंट अफेयर्स में कोई और सेक्शन ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में भेजिए। धन्यवाद।